Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman, and I'm into real estate from last 25 years. I take my job as serving rather than selling, and I love giving plenty of free advice in real estate. तो आज का टॉपिक है दोस्तों गोदरेज स्काई गार्डन एट बदलापुर. So let's begin with the show. So friends, before we begin with the show, this is the plot layout, and in this plot you can see there are several buildings over here. So I'll just zoom this to show you exactly where and what phases are going on. So when you see over here, this is tower 1A and 1B. So tower 1A and 1B and tower 2A and 2B, this comes in phase 1. And tower 3, tower 4A, 4B and tower 13ABC. This comes in phase 2, and tower 11, 10, 11 and 12, this comes in phase 3. So there are phase 1, phase 2 and phase 3. So when we see over here, this is phase 1 which is sold out, and this portion is phase 2 and this portion is phase 3. So we are talking about Godrej Sky Garden. This is phase 3 over here. This is tower number 10, 11 and 12. And of course इसके बारे में भी बात करेंगे. This is phase 2. पर इसमें जो फ्लैट्स अवेलेबल है सिर्फ 1 BHK अवेलेबल है. इसमें जो है 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है, और इसमें जो है सिर्फ 1 BHK अवेलेबल है. फेज 2 में सिर्फ 1 BHK अवेलेबल है, और फेज 3 में जो है 1 BHK and 2 BHK available. So this is the plot size. This plot is not more than 13 acres. और ये 13 acres के अंदर ये सारे बिल्डिंग्स बने हुए. ये अंडर कंस्ट्रक्शन है. ये फेज 2 अभी पोजीशन इसका देंगे थोड़े तो 1 साल के अंदर, और इसका 2 साल के अंदर देंगे पोजीशन. इसके बीच पे कुछ नंबर्स मिसिंग्स है. जैसे यहाँ पर 10, 11, 12 शुरू होता है. यहाँ पर 13 नंबर है, 13 ABC, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तक आया. यहाँ तक 13 है. उसके बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग है. तो मिसिंग जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा. ये जो प्लॉट का आप डायमेंशन देख रहे हो, यहाँ पर फेज 4 आएगा आगे चलकर. यहाँ पर फेज 4 आएगा आगे चलकर. So this is the plot, and there is phase 4 also in this plot, which will come further. So now we are talking about phase 3, which is named as Godrej Sky Garden, which is in Viva, Godrej Viva at Badlapur. Viva is the whole complex, and Sky Garden is the building over here. And Viva is the whole complex this is the whole complex is known as Viva. Okay, and this building is called Sky Garden. 1, 2 and 3 building is known as Sky Garden. So we will talk about Sky Garden today. So this project, as I told you, this is Sky Garden at Badlapur, and the whole complex is known as Godrej Viva. So this is in joint venture with Bakrotunda Real Estate Company Private Limited. It's a real estate developer, and Godrej is in joint venture with Bakrotunda Real Estate Private Limited. So the biggest advantage of Badlapur is that it has easy connectivity, and easy connectivity by rail, roads, and even the metro lines are coming up in Badlapur. So Badlapur is developing very fast in the central line over there. And there is one more proposed infrastructure development, which is the Khatai Naka Badlapur State Highway, which will be crossing Shilphata Karjat Road. So this complex Viva or Godrej Sky City will be in it will be passing through this complex over here. So that highway is known as Khatai Naka Badlapur State Shilphata Karjat Road, which is at Dombivli. And तो खटाई नाका बदलापुर स्टेट हाईवे जो है वो ये प्रोजेक्ट के साइड से होते हुए निकलेगा, और विरार अलीबाग रोड जो है वो मल्टीपर्पज कॉरिडोर जो है वो भी यहाँ से बदलापुर से होकर निकलेगा. तो विरार अलीबाग, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, विरार से अलीबाग जो कॉरिडोर है वो 8 लेन का कॉरिडोर होगा, जो बाय रोड से अगर विरार से अगर अलीबाग जाते हैं, जो कि बदलापुर होकर वो रास्ता निकलेगा, तो जो कॉरिडोर का बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट को. और विरार से अगर अलीबाग जाना है 129 से 130 किलोमीटर के आसपास होगा, जो कि 1.5 घंटे के अंदर
आप अलीबाग तक पहुंच सकते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ वाइज देयर आर लॉट्स ऑफ रेप्यूटेड स्कूल्स आर देयर, like Gurukul International School, Don Bosco School, Blossom Convent School, Fatima High School, and many more. And medical services also like Dhanvantari Hospital, Spandhan Hospital, Sushruth Hospital, Mangalia Hospital, Himaya Hospital, Mamta Hospital. So these are hospitals close by to this complex which is Sky Garden, which is coming up at Badlapur by Godrej. And from last 6 to 7 years, when you see Badlapur, it is the prices has gone up by 50 to 160%. So whatever the people have invested in Badlapur in last 6 to 7 years, the prices have gone double and slightly more than that. So at least 160% appreciation everybody has got. Even the end user और जिन्होंने अपने लिए भी लिया है, एंड यूजर ने लिया है, और जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया है वहाँ पर बदलापुर में, तो उनको भी बेनिफिट मिला है. और जब गोदरेज जैसे डेवलपर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक ब्रांड वैल्यू का भी रिटर्न अच्छा आता है. और प्रॉपर्टी है तो उसका रिटर्न तो आना ही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उतना ही है. बाकी प्रॉपर्टी में तो रिटर्न आता ही है. कभी कभी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जंप कर लेती है ऊपर, कभी कभी 2-4 सालों में बहुत ज़्यादा जंप कर लेती है. कभी थोड़ा सा एप्रिसिएशन आता है, समझ लो 7 साल 8 साल में आपको थोड़ा एप्रिसिएशन देखने मिलता है, पर बेटर देन द बैंक इन्वेस्टमेंट. कभी कभार ऐसा भी होता है कि 9%, 10%, 12% आपको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट छूट जाए. तो डिपेंड्स, मार्केट कैसे चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि गोदरेज है तो इस प्रोडक्ट में आपको रिटर्न्स जरूर मिलेगा. दूसरे प्रॉपर्टी में भी रिटर्न्स आता है, पर यहाँ पर एक तो आपकी डिलीवरी जो होगी वो टाइम पे होगी. आपका रेंटल इनकम जो है वो टाइम पे रेंटल इनकम शुरू हो जाता है. या तो अगर आपको अपने फ्लैट में रहने जाना है तो आपको बिल्कुल टाइम पे वो पोजीशन मिल जाता है, तो आपका कैलकुलेशन कहीं भी फेल नहीं होता है उस मामले में. तो यहाँ पर गोदरेज के मामले में मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि टाइमली डिलीवरी होगा प्रोजेक्ट का. इसके लिए मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ. You see roads and rails and all metro lines and the highways which are coming up, all this ecosystem infrastructure is developing very fast in बदलापुर. ये जो रोड आता है बदलापुर से, यहाँ पर आप देखोगे रेलवे स्टेशन है, बदलापुर रेलवे स्टेशन. और ये जो रोड आता है यहाँ से मंगालिया हॉस्पिटल क्रॉस करते हुए, स्टेट बैंक इंडिया क्रॉस करते हुए, SR पेट्रोल पंप है और गाँव देवी टेम्पल है, ये भी क्रॉस करते हुए खारवाई एरिया है, उसको क्रॉस करते हुए नेरुल रोड, नेरुल बदलापुर रोड है. इस रोड के ऊपर ये स्काई गार्डन गोदरेज विभाग करके प्रोजेक्ट है. और ये आगे ये रोड माथेरन के लिए जाता है. और ये बगल में जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये उल्लास रिवर है, जो काफी बड़ा रिवर है, उल्लास रिवर. और इकोसिस्टम आप देखेंगे ये काफी मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ पर स्टेशन के सराउंडिंग एरिया में. और स्टेशन से ये काफी दूर भी नहीं है, हार्डली ये मेरे ख्याल से 10 मिनट्स बाय ऑटो होगा. तो अगर आप स्कूल्स देखेंगे तो चैतन्य विद्यालय स्कूल 2 मिनट के डिस्टेंस पे है. देन पोडार ब्रियो स्कूल, MJ इंटरनेशनल स्कूल, BSM इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉन बॉस्को स्कूल, होली राइट स्कूल, लीलावती, अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये सब आधे घंटे, 17 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट के डिस्टेंस पर है. दूसरा इकोसिस्टम आप देखोगे लैंडमार्क और ट्रांजिट, बदलापुर स्टेशन 10 मिनट है, डीमार्ट है, रिटेल है, हार्डली 20 मिनट्स. और विद इन प्रमाइस, रिटेल इज और विद इन प्रमाइसेस. हॉस्पिटल्स आप देखेंगे तो सुश्रुत हॉस्पिटल, मंगालिया हॉस्पिटल, खेमाया हॉस्पिटल, ममता हॉस्पिटल, धनवटी हॉस्पिटल, दिस इज हार्डली 12, 13, 6 and 7 मिनट्स. और बैंक और ATM आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, these are all very close to the complex. कॉम्प्लेक्स के काफी नजदीक है ये. तो ये इकोसिस्टम आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो प्लान में आप देख रहे हो, जो प्लॉट है वो बहुत ही राइट पोजीशन पे लोकेटेड है, बहुत ही सिटी के नजदीक भी नहीं है जहाँ पे नॉइज पोल्यूशन होगा. और हार्डली स्टेशन से 10 मिनट का ड्राइव है. 10 मिनट का ड्राइव अगर शेयरिंग ऑटो भी यहाँ से चलता है तो 10 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाते हैं. तो इतना डिस्टेंस तो स्टेशन से होना चाहिए, बिल्कुल स्टेशन के नजदीक होगा तो नॉइज पोल्यूशन भी यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा सा ज्यादा होगा. ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी अपार्टमेंट है. और जितना भी पार्किंग दिया हुआ है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे पार्किंग दिया है इन्होंने.
और बिल्डिंग हैज पर गोदरेज हमेशा उनकी बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल लाइट शेडेड होती है, फुल्ली फ्रेंच कट विंडोज होता है और उसमें कुछ फ्लैट्स में डेक भी दिया होता है, डिपेंड्स। तो बिल्डिंग जो उनकी होती है काफ़ी मतलब स्लीक, वेल कलर्ड, वेल डिजाइन, और पिक्चर देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि फिनिशिंग टचेस आर वेरी गुड। सो दिस इज ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी टावर, स्काई गार्डन जो है, दीज आर 3 टावर्स आर देयर, 3 टावर है जिसमें ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी का फ्लैट्स है। सैंपल फ्लैट का भी इमेज आप देखोगे तो अंदर जो पेंट का कलर दिया है वो व्हाइट कलर है, चेज व्हाइट। अगर आप डेकोरेशन ऐसा करते हैं कि अगर समझो व्हाइट कलर आप रखते हैं, व्हाइट कलर का यूनिट रखते हैं, ज़्यादातर इसमें व्हाइट ज़्यादा बताया हो। व्हाइट रखने से क्या होता है कि फ्लैट थोड़ा सा और बड़ा और खुला लगता है, और आप थोड़ा सा विंडो दिन के टाइम खोल देते हैं तो फ्लैट पे लाइट अच्छी रहती है। डार्क फर्नीचर्स और डार्क कलर का शेड्स आप रखते हो तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अंधेरा जैसा फ्लैट के अंदर लगता है। तो इसके लिए ज्यादातर डेवलपर व्हाइट शेड्स ही फ्लैट के अंदर देते हैं, या कंपैरेटिवली उसके व्हाइट से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ग्रे हो सकता है, पर ज्यादातर डेवलपर है व्हाइट कलर ही देते हैं। और गोदरेज का मैंने खास करके देखा है कि व्हाइट शेड ही फ्लैट के अंदर देते हैं ताकि थोड़ा सा ब्राइट लगे, फ्लैट बड़ा लगे, खुला लगे और पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे फ्लैट के अंदर। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ व्हाइट कलर। बाकी अपनी अपनी पसंद है। यहाँ पर भी आप देखेंगे नीचे फ्रेंच कट विंडो है, तो फ्रेंच कट विंडो से क्या होता है कि ये विंडो आप थोड़ा सा भी खोल देते हो, समझ लो 1 फीट खुला रखते हो, अगर पूरा खुला, यहाँ पर देखिए डेक दिया हुआ है बाहर, जैसे मैं बैल्कनी बोल रहा था ना, यहाँ पर बैल्कनी दिया हुआ है। और अगर ये फ्रेंच कट विंडो थोड़ा सा भी खोलते हैं और किचन और बेडरूम का या विंडो खोल देते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत बढ़िया होता है इस टाइप के फ्लैट में जहाँ पर फ्रेंच कट विंडो होता है। और दूसरी बात, अगर आपका विंडो बंद भी है, सब जो बरसात के दिनों में आपने विंडो बंद रखा है और कर्टन्स आपने पूरा खुला रखा है, तो फ्लैट के अंदर लाइट बढ़िया रहती है। तो फ्रेंच कट विंडो का ये फायदा होता है, जो फुल फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर तक का विंडो होता है ना पूरा खुला, इसका फायदा ये रहता है कि आपके फ्लैट के अंदर लाइट अच्छी आती है उससे। तो दिस इज द इमेज ऑफ द बिल्डिंग एंड यू कैन सी ओवर हियर इट्स अ गेटेड कम्युनिटी और देयर इज अ रूफ टॉप एमिनिटीज दे हैव गिवन ऑन टॉप। यहाँ पर आप देख ले ऊपर कुछ जैसे गार्डन जैसा दिख रहा है, तो कुछ एमिनिटीज जो है रूफ टॉप में दिया हुआ है और स्मार्टली डिजाइंड होम्स आर गिवन ओवर हियर। सो इट इज़ वेरी वेल, जो जैसा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बाहर निकला, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बाहर निकला, ऐसे यहाँ पर बाहर निकला है, तो यहाँ पर क्या होता है क्रॉस वेंटिलेशन बिल्डिंग को काफ़ी अच्छा मिलता है इस टाइप के डिज़ाइन में। और ग्राउंड प्लस ये टोटल 18 स्टोरी टावर है और दूसरा रिटेल प्लाजा वगैरह जो है वो कॉम्प्लेक्स के नज़दीक के सराउंडिंग में ही है। हालांकि बिल्डिंग के नीचे कोई शॉप्स वगैरह नहीं दिया हुआ, इट्स ए प्योरली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। पार्किंग आप देखोगे, ये पार्किंग जो है सारा ओपन पार्किंग बिल्डिंग के सराउंडिंग में दिया हुआ है। पार्किंग जितना भी दिया है बिल्डिंग के सराउंडिंग में दिया हुआ है और फिर उसके सराउंडिंग में ट्रीज वगैरह काफ़ी दिया हुआ है। पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा आप यहाँ से देखोगे ये विवा कॉम्प्लेक्स है और ये जो 3 बिल्डिंग है ये स्काई गार्डन है। तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रीज, बहुत सारा ट्रीज दिया हुआ है, फिर उसके बाद पार्किंग दिया है और पार्किंग के बाहर नीचे की तरफ आप देखोगे बहुत सारी लाइटनिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो उससे क्या है कि कॉम्प्लेक्स काफी ग्लैमरस लगता है रात के टाइम। यहाँ पर भी आप देखोगे कि एमिनिटीज, कुछ एमिनिटीज रूफ टॉप पे दिया हुआ है, बहुत सारा एमिनिटीज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, लेकिन कुछ एमिनिटीज जो है वो रूफ टॉप में दिया हुआ है ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे और ये एक जगह से दूसरे बिल्डिंग में, मतलब ऑल टेरेसेस कनेक्टेड फ्रॉम बिलो ओवर हियर, यू कैन वॉक फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर ओवर हियर। So this is like sky garden you can say, or sky walk you can say. So there is a sky walk over here which has given on top. फिर यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन दिया हुआ है फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। अगेन यहाँ पर आप देखोगे यू कैन वॉक फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर ओवर हियर। अगर किसी को अगर नीचे वॉकिंग नहीं करना है, टेरिस के ऊपर जाके वॉकिंग करना है, तो यहाँ पर वॉकिंग कर सकते हैं। सो एमिनिटीज वाइज देयर इज अ स्टार गेजिंग डेक, देयर इज अ योगा एंड मेडिटेशन पवेलियन, देयर इज अ सीनियर सिटीजनशिप एलकेव, जो कि मैंने बताया ना टेरिस में ऐसे छोटा सा गार्डन बना है, सिटिंग अरेंजमेंट बना है, ये ऊपर टेरिस पे बना हुआ है। और फिर बारबेक्यू है, फिर लाइफ साइज चेस और टॉडलर्स एरिया। और दिस इज अगेन द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग। और यहाँ पर नीचे कुछ एमिनिटीज नीचे की तरफ दिया हुआ है, जो जिम वगैरह है वो ग्राउंड फ्लोर पर आएगा। अगेन स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बॉक्स क्रिकेट, हाफ बास्केटबॉल, एम्फीथिएटर एंड स्केटिंग
rink which is given on the ground floor. The swimming pool is also there in this complex. This is tower number 10, tower number 11 and 12. Let's come on the floor plan, prices and the position. So this is the floor plan. That means there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 flats are there every floor. So let's see one single unit plan. So this is the unit plan for 1 BHK. So 1 BHK area is around 444. 1 BHK area is 444 carpet area and price is 33 lakh rupees. So this is the forward entrance, dining space, living area, and there is a small balcony over here. Balcony is provided in this flat, and there is one washroom over here. One washroom is attached to the bedroom, kitchen, and there is a utility room, washing machine वगैरह रखने के लिए utility room दिया हुआ है. प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वो सारा एक्स्ट्रा रहेगा उसके ऊपर. आप करीबन 5% स्टैम्प ड्यूटी, 5% GST, 11-12% परसेंटेज और ऊपर से और आप पकड़ लें. दिस इज 2 BHK डिलाइट. 2 BHK डिलाइट अगेन पैसेज, forward entrance, dining space, living area, kitchen, one washroom over here. This is bedroom attached, and there is balcony over here, and there is utility room over here, utility place. And this flat in a hall, they doesn't have a balcony. In bedroom they have one small balcony over here. तो 2 BHK डिलाइट जो है उसका एरिया है 592 और कॉस्ट है 43 lakhs. उसके ऊपर आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST 11 से 12% चार्जेस और पकड़ लो आप. फिर 2 BHK लक्स जो है वो 712 कारपेट है, जो यहाँ से अगेन फायर एंट्रेंस है, डाइनिंग स्पेस, लिविंग रूम, किचन विद यूटिलिटी रूम, bedroom. This is attached. This is common washroom, and there is a balcony over here. So this area is 712, 2 BHK 712, and the price for this is 51 lakhs. 712 is the carpet area, and price is 51 lakhs plus other charges. So in other amenities, they have rainwater harvesting, fire safety measures, sewage treatment plant, solid waste management, terrace amenities, stormwater drains, and landscaping and tree planting. So all these amenities are also provided by the developer in this complex. So friends, Godrej का वैसे काफ़ी projects all over मुंबई और पूना और all over इंडिया में काफ़ी projects इनके बन रहे हैं. और ये जो प्रोजेक्ट है वो वक्रतुंडा KR रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड इनके साथ जॉइंट वेंचर है. और प्रोजेक्ट वैसे काफ़ी टाइम पे फर्स्ट फेज़ का डिलीवरी हो चुका था. सेकेंड फेज़ का पोजीशन मार्च में 2022 में होगा, फेज 2 का पोजीशन, और फेज 3 का जो पोजीशन है वो जून 2023 में होगा. इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपको और भी बेटर नॉलेज इस प्रोजेक्ट के बारे में मिलेगा. और बुकिंग के लिए आप मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए 7400138561. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. So don't forget to share, and thank you for watching this show. See you again very soon. Thank you. Bye bye.